ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਰਘਵਿੰਦਰ ਤਨਵਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ और लगभग 38 साल इस सर्विस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਐਂਡ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇਨ ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਨਰ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮੇਟਸ ਇਨ 2015। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ काफी कंट्रीब्यूशन है ਤੇ मैं रघविंदर तनवर जी ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਰਘਵਿੰਦਰ ਤਨਵਰ ਜੀ। Thank you, Satinder ji. I am very happy to be on this forum today. I am very grateful to the organizers, particularly Satinder ji, who has been in touch with me for many days now. See, मैं जो बात आपसे करूँगा आज, basically it is a kind of general lecture. I'll try to give you a perception of the partition process, what partition was, what it meant, the key problems sigi, anarchy kyun hui, ena markaat kyun hoya, odi responsibility kidi sigi. So it will be a kind of mixture. Basically, I would have liked to talk in English, but it's okay. I'm okay in Hindi, in Punjabi, it's not an issue. See, most of you are aware that of the general perception, most of you have heard, you know, from reading films, oral transcripts, jehde meri generation de unna nu thoda zyada pata hai. A general picture of virtually everyone who is about 30-40 years has heard of partition in some form or the other. What we would be discussing today with you would be a kind of fundamental problems, fundamental issues. You know, before I come to that, I want to make a point on this. You know, we have now completed 75 years of independence. 75 साल हो गए ने आजादी दे। हिस्ट्री च एक बड़ा बेसिक प्रॉब्लम होता है नैरेटिव का। You know, generally there is a perception that those who are in power create their own narrative. The India whoever is in power creates his own narrative. So this creation of a narrative, partition has been a big victim. Partition, the history naal bada ek अन्याय hoya hai in the sense that the narrative that has become mainstream, you know, the story that has gone online, the story that is taught in colleges and universities, in the civil service examination systems. So the story is really a distortion, you know. After, you know, in history there is a very popular saying. We have a saying in history, जिना तुसी दूर जाओगे उन्हें ही थानू स्पष्ट नजर आंदी कोई any event, you know, it is the opposite. Someone would say that you go near an event, you see it clear. In history it is the opposite. The longer the time, the more distance. So in history this understanding of being from a distance gives you a clearer picture. We have now been free for 75 years and questions are beginning to get raised of why this happened. You know, recently, kuch samay pehle, there was an article in the Tribune by the former DGP of Punjab, Mr. Ribeiro. He suggested that we should forget, you know, we should not remember the agonies of partition. We should not remember the pain of partition, and it is to be forgotten. Almost 13 years ago, I was giving a lecture at the University of Southampton. A similar question was raised. I was asked by a professor from Cambridge why do historians who come from India like to discuss partition when they come to the UK? So this false narrative has prevailed in many ways. So what we will be discussing today, जो मैं बात करूंगा आपसे वो ये होगी कि ये false narrative का क्या structure और partition की reality क्या है। अनार्की अगर हुई, मारकाट अगर हुई, क्यों हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां लाई करती है। See, let me give you an example. When you talk of partition, you know, the picture that should come to your mind is the figures. The figures are monumental. You know, we are talking of 1.5-2 crore bande idhar se udhar gaye. You know, the death figures are even till date. Even a scholar, even a student of history like myself cannot say whether 5 lakh death hui, 7 lakh hui. कहने वाले 20 लाख भी कहते हैं, but that is not so important here. So the point really is, why did this all happen?
So what we will be discussing is why it happened, how it happened, and where does the responsibility, if any, lies, you know. जो narrative की बात मैंने आपसे करी. So the first narrative that needs to be questioned. You see, the narrative was कि partition एक process of historical evolution का process है. You know, it happened because history ने partition को किया, history में partition लिखा हुआ था. ये एक false narrative है. पंजाब के स्ट्रक्चर को आप देखते हैं, 29 districts of Punjab pre-47. See, there is not one village in the entire 29. I have worked for 40 years on this field. एक भी गांव पंजाब का नहीं था जो कि एक कम्युनिटी कह सकती थी कि ये हमारा है. अगर मुस्लिम डोमिनेटेड है तो वहां सिख भी जरूर होंगे, सिख डोमिनेटेड है तो वहां मुस्लिम भी जरूर होंगे, या नॉन सिख या नॉन मुस्लिम होंगे तो वहां आपको हिंदू मिलेंगे, वो भी. सो द कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ पंजाब was historical, it was a historical evolution. So this evolutionary process was challenged by partition, by the plan for partition. दूसरा फॉल्स नैरेटिव क्या है कि मासेस की सपोर्ट थी पंजाब में पार्टीशन को इंडिया में. ये एक बहुत जबरदस्त फॉल्स नैरेटिव है. यू सी, लाइक द क्रिएशन ऑफ द मुस्लिम लीग, द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन, जेड़ा पार्टीशन की थ्योरी सीगी, इट डिड नॉट हैव मास सपोर्ट. यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस. Partition was a decision, the whole plan was executed at the highest level. अब मुट्ठी भर लोग सी जिन्होंने एक सारी पार्टीशन का डिसीजन लेता है. The masses were not involved. Jayaprakash Narayan, who was then a leading socialist leader, very dynamic leader, he has gone on record. He even says that the Constituent Assembly, the interim parliament, did not have the right to take a call on this. Meaning to say that partition के पीछे कोई mass consensus नहीं था, कोई statutory consensus नहीं था, and because it was discussed in the All India Congress Committee on 14 June 1947. अगर आप उसकी proceedings को देखें, 2 बार गांधी जी छोड़ के जाते हैं बाहर, बड़ी मुश्किल से उनको बनाया जाता है. फिगर्स तो लगेंगे ऐसे कि हाँ मेजॉरिटी थी, बट अगर आप डिबेट ही हिस्ट्री के अंदर, यू आर नॉट ओनली टू गो बाय द फिगर्स, यू आर टू गो बाय द कंटेंट ऑफ द डिबेट. इसी गांधी जी या नेहरू जहां बैठे हो तो उनके सामने देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ देयर प्रपोजल बीइंग डिबेटेड. सो देयर वाज अ हीटेड डिस्कशन अगेंस्ट पार्टीशन, बट द प्रपोजल वाज पास. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट पार्टीशन डिड नॉट एंजॉय मास सपोर्ट. It did not enjoy support of any statutory body, whether it is interim parliament, whether it is any other body. See, इतना बड़ा decision ले लिया गया and there is no consensus. It is a decision without a consensus. Okay. Third, कि partition करने से communal problem solve हो जाएगा. Again, अगर यही एक मकसद था partition करने का, तो communal problem तो बिल्कुल solve नहीं हुआ. Exactly the opposite happened. So, number 3. You know, the general consensus is कि पार्टीशन करना तो एक बहुत जरूरी था, और क्योंकि इसकी मास सपोर्ट थी जैसे मैंने बताया, बट ये एक बहुत फॉल्स नैरेटिव है. यू नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पार्टीशन को हम केवल डेथ के फिगर्स या एनार्की के फिगर्स से ना देखें. पार्टीशन ने एक वे ऑफ लाइफ को एंड किया. मैंने बताया कि पंजाब कोई सामान्य प्रांत नहीं है. पंजाब इज नॉट लाइक अदर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया. पंजाब हैज अ हिस्ट्री ऑफ कोएग्जिस्टेंस, अ हिस्ट्री ऑफ caste affiliations, a history of bonding of different kind. It ended a way of life. मेरी बहुत बड़ी एक किताब है जो 2006 में आई और वो दुनिया भर में किताब पॉपुलर हुई. इसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि पार्टीशन ने पंजाब को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया. पार्टीशन ने पंजाब के इस वे ऑफ लाइफ को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया. यू नो, वायलेंस बहुत होता रहा है पहले. जहां 2 मेजर कम्युनिटीज होंगी, सिखों के साथ क्या समस्या थी कि सिख एक बहुत डायनेमिक कम्युनिटी थी. 29 जिलों में से एक जिला भी ऐसा नहीं है पंजाब के अंदर जहां सिख्स डोमिनेट कर रहे, यानी डोमिनेंट कम्युनिटी है. बिकॉज सिख समुदाय को जहां अपॉर्चुनिटी मिली वो उसी जिले में चले जाते. तो नतीजा उसका यह हुआ कि सारी ये कम्युनिटी डिस्पर्स्ड थी. सो देयर इज नॉट अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट, but that does not mean the Sikhs are less than 1% of India's population in 1947 and just about 12% of Punjab's population in 47. But the importance enjoyed by the Sikh community was because of the role, because of the status that they enjoyed by virtue of their hard work, by virtue of the manner in which they tilled the soil, they are good tillers of the soil, the manner in which they contributed to the British Indian Army, and so on and so forth. So you have these different reasons of why a community that was less than 1% of India's population was so important in 47. To that we'll come back later. Now, you know, the figures, for example, 6 million non-Muslims
move out from West Pakistan into India. 6.5 million Muslims moved from the Indian part into West Pakistan. 4 million Muslims came in, non-Muslims came in from East Bengal, and another 1 million Muslims went out of West Bengal into East Bengal. So these are figures. The estimated cost, वकील की एक बहुत फेमस स्कॉलर हैं पंजाब बॉम्बे यूनिवर्सिटी के जमाने में 1952 में किताब आई. He calculated the losses that emerged from partition. He gives us a figure of around, in today's term, it would be around 2.5 lakh crores. This is the kind of property that was, that was destroyed in 47. With regard to the figures, मैं आपको figures एक random दे रहा हूँ. See, as a student of history, हमारे लिए important नहीं होते figures, but क्योंकि dimension समझने के लिए figure देना बहुत जरूरी है. It is estimated that the number of deaths in partition 47, starting from about March 47 to say September 47, the number of deaths is certainly in excess of 5 lakhs. Some people say it crossed 1 million, some go even up to 2 million. I don't agree with that, but I would say around 700,000 to 750,000 people lost their lives in these 4 or 5 months. The figure is not so important. What is important is the nature of violence. You see, in world history, you will never find this kind of violence that the Punjab witnessed in 1947. मैं आपको बहुत अथॉरिटी के साथ ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार की घटनाएं 47 में पंजाब के मैदानों में होती हैं, विश्व के इतिहास में आपको इसका उदाहरण नहीं मिलता है. इससे बहुत ज्यादा वायलेंट किलिंग्स हुई हैं, दुनिया में हुई हैं. इस पर वो किलिंग्स गवर्नमेंट करती थी. माओवादियों ने करा चाइना में, स्टालिनवादियों ने करा रूस के अंदर, 5 मिलियन लोग मारे गए रशिया के अंदर, 3-4 मिलियन लोग मारे गए चाइना के अंदर, पर वो सरकारी फौजें करती थी आपस में मार काट के अंदर. और इस प्रकार का वायलेंस, इसी बहुत सी थ्योरीज हैं इस बात पर, इस प्रकार का वायलेंस, बिस्टैलिटी, जिसको एक कहेंगे जानवरीय वायलेंस होता है पंजाब में. तो ये क्यों हुआ, इसको समझने के लिए इसी ये आपको जानना जरूरी है कि जिन लोगों ने इस वायलेंस में पार्टिसिपेट किया, वो केवल वायलेंस इसलिए नहीं कर रहे थे कि किसी की जान लेनी थी. उन्होंने वायलेंस का मेन रीजन ये था कि वो आदमियों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप अपने परिवार को डिफेंड नहीं कर सकते. यू आर नॉट अ प्रोटेक्टर ऑफ योर फैमिलीज. This was the reason for the violence. You see, I can go on. I mean, I have a limited time. I could go on and on talking on this for hours and explain to you the nature of violence. उन स्पेशल हॉस्पिटल्स खोलने पड़े ऐसी महिलाओं के लिए जिनके ब्रेस्ट्स को काटा गया. ब्रेस्ट हॉस्पिटल खुले. अनेक किस्म के इंसिडेंट्स हैं, आप सब जानते हैं, मैं उस पर ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा. So, this basic understanding of parliament is that of partition is that it was very violent. It was, huge amount of destruction of property and things so and so. Now, in history, a historian cannot sit in judgment. I cannot say he is at fault. That is not our purpose, and nor is it the purpose of this online discussion. But you see, the tendency has been there. Historical narrative में ये प्रयास हुआ है पिछले 70-75 साल में कि पार्टीशन के नैरेटिव को भूल जाए, पार्टीशन के नैरेटिव को आप स्वीप कर दिया जाए, उसको भुला दिया जाए, क्योंकि ये तो होना ही था. ये तो एक छोटी सी कीमत है जो हमें आजादी के लिए चुकानी थी. अगर आप उस जमाने की न्यूज़पेपर्स को देखें, आप हैरान हो जाएंगे पढ़कर. इतना विरोध है, इतनी आलोचना है, इतनी क्रिटिसिज्म है 1947 में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते. ये 75 years have gone by, एक सस्टेन्ड एफर्ट हुआ, नैरेटिव बनाया गया कि पार्टीशन तो होना था, ज्यादा नहीं था, the freedom concept was more valuable. See, I have heard so many people. I've written for 40 years virtually. The book that I'm talking about came in 2006. It was published by Pakistan Times के जो Vanguard Publishing House है लाहौर में, इंडिया में पब्लिश हुई. वो अनेक यूनिवर्सिटीज की एसेंशियल रीडिंग लिस्ट में आज ये किताब है. उसमें मैंने डे टू डे इंसिडेंट 700 पेजेस में एक दिन का 1 घंटे के हिसाब से इंसिडेंट दिया है. सो ये आप मानकर चलिए कि पार्टीशन का जो वायलेंस हुआ, जिस प्रकार की घटनाएं हुई, उसके वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे पास कोई पैरेलल नहीं है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डिड थिंग्स गो सो ड्रामेटिकली रॉन्ग. जैसे मैंने आपको बताया अभी कि एक कॉलोनियल माइंडसेट था. सी, अगर आप पार्टीशन के, मैंने अभी जो मेरी किताब पब्लिकेशन डिवीजन ने करी है, अभी रिलीज होनी है नेक्स्ट मंथ, एडवांस कॉपीज आ गई हैं, तो उस किताब में मेरे फोटोज दिए हैं, उसमें मैप्स दिए हैं. उस किताब में अराउंड 250 फोटोग्राफ्स और मैप्स हैं इस किताब में. वो मैप्स के अंदर आप देखिए, हम भारत जो है, ये देश जो है, इंग्लैंड के लिए, वहां के जो रूलर्स के लिए, लंदन वालों के लिए, हम एक छोटा सा, एक जैसे सायम है, इजिप्ट है, मले सो एंड सो, हम एक कॉलोनी है, दूर का निवेशवाद है.
They are treating us as just another small colony. See, अगर आप इंग्लैंड को देखिए 1947 में, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, इंग्लैंड के ऊपर 3,000 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग्स का कर्जा है। इंग्लैंड किसी परिस्थिति में नहीं है कि वो अपने आप को संभाल पाए। हमें तो क्या संभालेगा, हम वी आर सो मेनी टाइम्स बिगर देन इंग्लैंड। आयरनी ये है कि हमने इंग्लैंड जैसे देश को, जो देखिए इंग्लैंड बहुत वीकता से, बहुत सैक्रिफाइस के साथ दूसरे विश्व युद्ध में वो ऊपर आए, परंतु जो कीमत चुकाई, उस कीमत के बाद वो उपनिवेशवादों को संभालने, यानी कॉलोनीज को संभालने की परिस्थिति में नहीं थे। दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू लुक आफ्टर देयर कॉलोनीज, येट वी मेड देम द जज। हमने कहा अब यू सिट ऑन आवर जजमेंट, वी अलाउड देम टू ड्रॉ द लाइन। सर रैडक्लिफ हैड नॉट इवन विजिटेड इंडिया, इट वाज हिज फर्स्ट विजिट। जब सर रैडक्लिफ से पूछा, कहा गया कि आपने ये काम करना है, जब ये था कि आपने 1 साल में करना है, पार्टीशन तो 48 में होनी है, 1 साल का काम उनको 3 हफ्ते 4 हफ्ते में करना पड़ा। तो ये आपको समझना बड़ा जरूरी है, जो काम 1 साल में होना था वो काम 3 हफ्ते में हुआ। इलिटिस्ट माइंडसेट, इसी ये दुर्भाग्य है पंजाब की। अगर पार्टीशन को देखें, मैंने 45 से लेकर अनेक मैंने कॉलोनी पेपर्स में लगभग 32 पेपर्स को पढ़कर अपनी किताब लिखी थी 2006 में, इंग्लैंड में भी, इंडिया में भी, अलग अलग लाइब्रेरीज में। इसी अगर आपको एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टीज, सिखों के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय हुआ कि सिखों के साथ विशेषकर मास्टर तारा सिंह की ये डिमांड थी कि एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन के साथ एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी होना जरूरी है, ये नहीं हुआ। पर ये सबसे पहली डिमांड थी। पंजाब के वायलेंस की कीमत किसने चुकाई, वो सामान्य वर्ग ने चुकाई। 90% पॉपुलेशन पंजाब की वो थी छोटे छोटे किसान, 10-5 एकड़ वाले किसान, छोटे दुकानदार, छोटे पेशावर, उन लोगों ने कीमत चुकाई। उन लोगों ने क्यों कीमत चुकाई? क्योंकि बड़े जो प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल लोग थे, अगर आप देखें, वो 47 के मारकाट होने से पहले या उस दौरान अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर चुके हैं। I have so many examples in my books which I have given. I'm giving it again in 47 किताब आ रही है कि important people already changed their properties and they kept saying, इसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये पॉइंट कि मारकाट ज्यादा क्यों हुई, खराबा इतना क्यों हुआ, और आम वर्ग ने इसकी कीमत क्यों चुकाई? क्योंकि आम वर्ग को ये कहा गया कि चिंता मत करो, ये तो टेम्पररी फिनोमेना है और कोई पार्टीशन नहीं होनी, आपने घर बार छोड़ दिया टेम्पररी, अब वापस थोड़े दिन के बाद चले जाएंगे। ये इंप्रेशन है। अगर आप 47 के न्यूज़पेपर्स उठाएं, आप किसी भाषा के न्यूज़पेपर को उठाइए, आपके अंदर आपको अपील्स मिलेंगी, लीडरशिप, नेहरू, गांधी, एवरीवन इज अपीलिंग टू द मासेस, डोंट शिफ्ट आउट। जब आम आदमी शिफ्ट आउट करने लगा तो 2-4 घंटे की नोटिस पर शिफ्ट किया, क्योंकि परिस्थिति ऐसी हो गई। ये आपको समझना चाहिए कि वायलेंस के पीछे जो प्रमुख कारण है वो ये शॉर्ट नोटिस था। कोई योजनाबद्ध ढंग से वो माइग्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को कहा गया यू डोंट हैव टू शिफ्ट, कीप सिटिंग वेयर यू आर। ऑलराइट, so this elitist mindset of partition, the decision is taken. See, अगर आप पढ़ें 47 के अंदर, मैंने इस किताब में फोटो दिए हैं, 47 में अंदर नवंबर में 47 में महारानी एलिजाबेथ का विवाह होता है इंग्लैंड में। माउंटबेटन उस विवाह में इंग्लैंड जाते हैं और उनकी जगह गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी। कुरुक्षेत्र दिल्ली से 100 मील दूर है। कुरुक्षेत्र कैंप के अंदर उस जमाने में लगभग 600-700 लोगों की रोज मृत्यु हो रही है, हैजा से और छोटी छोटी बीमारियों से। 100 मील दूर नवंबर के फिगर्स आप कुरुक्षेत्र रेफ्यूजी कैंप के देखें तो लगभग 600 लोग हर रोज मर रहे हैं कुरुक्षेत्र के कैंप में। केवल 100 मील दूर महारानी एलिजाबेथ के विवाह का संपन्न व्यवस्था हो रही है। इस प्रकार की इलिटिस्ट माइंडसेट है। मार्च 47 में रावलपिंडी राइट्स जब होते हैं, मुल्तान राइट्स जब होते हैं, 21 मार्च को दिल्ली के अंदर इंडिया इंटर एशिया कॉन्फ्रेंस होती है। उस फोटोज को देखिए आप, बड़ी आलीशान जलसे हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि इलिटिस्ट माइंडसेट। 47 अगस्त में 14 अगस्त को जब पाकिस्तान का जन्म होना था, माउंटबेटन ने कराची जाना है। माउंटबेटन की पर्सनल जो डायरीज हैं, अगर आप उनको पढ़ें, मैंने उनको एक्सेस किया है साउथहैम्पटन में जाकर, उन डायरीज में एक रेफरेंस है, यानी 7 अगस्त 1947 को जब पंजाब के अंदर खून की नदियां बह रही हैं, मीटिंग क्या हो रही है कि वहां का प्रबंध कैसे होगा, वहां कितने घोड़ों की बग्गी जाएगी, वहां कौन कौन सी गाड़ी दिल्ली से विमान भेजी जाएगी कराची। मैं आपको ये इंप्रेशन दे रहा हूं कि 47 को समझने के लिए आपको अनेक बातें देखनी होंगी। इलिटिस्ट माइंडसेट है। लाहौर के एसएसपी है W.H. रिच, उसकी मैंने पर्सनल डायरी मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देखी है।
WH चेरिच कहते हैं कि मुझे मार्च अप्रैल में मुझे रिलीव करने के ऑर्डर हो गए थे। मेरा सामान, वो अकेले रहते थे, शादीशुदा नहीं थे, उनका सामान कराची बंदरगाह पे जा चुका था, उन्होंने बंबई से जहाज पकड़ना था। कहते मैं तो एक वापस स्वदेश लौटने के मूड में था। 1 जून को उनको एक टेलीग्राम आता है कि आप लाहौर के एसएसपी बने रहेंगे, आपने पार्टीशन देगी। तो आप अंदाजा लगाइए आप किस प्रकार का फ्लक्स है। एसएसपी लाहौर अंडर ट्रांसफर है, उसका सामान जा चुका है और उसको कहा गया है कि आपने लाहौर का एसएसपी बनना है पार्टीशन को सुपरवाइज करने के लिए। तो द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, सारा प्रशासन जो है वो मूव पर है। कोई कहीं जा रहा है तो कोई, मैं सिविल सर्विस के फिगर्स भी आपको दे सकता था पर समय की सीमा है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। ये एक बहुत जरूरी है, ये हिस्टोरिकल एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी जानना बड़ा जरूरी है। नाउ देन जो बेसिक पोजीशन है कि हमने इंग्लैंड के साथ, जैसे मैंने बताया, 3000 मिलियन पाउंड्स का कर्ज है उनके ऊपर, और वो हमने आखिरी दिनों के इतिहास को देखें, ऐसे लगता है कि उन्होंने हमारा विभाजन कर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। 48 में जब माउंटबेटन परिवार भारत छोड़कर जाता है, अगर वो उस दिन की तस्वीरें देखें, आप मेरी किताब में मैंने दी हैं, वो आप आश्चर्य, यू विल बी शॉक्ड टू सी दोस फोटोग्राफ्स। मैसिव जबरदस्त डिनर हो रहे हैं, आलीशान डिनर हो रहे हैं। एक व्यक्ति कहता है कि तो राम राज्य नहीं है, तो रम राज्य है, जो सिविल मिलिट्री गैजेट के अंदर रिपोर्ट मैंने पढ़ी। तो इस प्रकार का वातावरण है दिल्ली के अंदर और देश के अंदर। अनार्की को समझने के लिए, जैसे मैंने बताया आपको अभी, अनार्की से मतलब मारकाट को समझने के लिए प्रशासन नहीं है पंजाब में। पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट्स, अगर आप ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब बन गया है। ईस्ट पंजाब में जो विधायक थे वो ईस्ट पंजाब आ गए। पहली मीटिंग ईस्ट पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली की 1 नवंबर 1947 को होती है शिमला में। 1947 की इस मीटिंग की, अगर ये आपको मैं ये ज्यादा दूर नहीं जाना, केवल ट्रिब्यून की फाइल्स देखनी है। मैंने अपनी किताब में ट्रिब्यून, अगर आप पहली 1, 2, 3 नवंबर के ट्रिब्यून, 47 के ट्रिब्यून को पढ़ें, आप शॉक हो जाएंगे पढ़कर। उसमें चर्चा जो हो रही है विधान पटल के ऊपर, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं। गोपीचंद भार्गव उठकर कहते हैं, क्षणो देवी अमृतसर से विधायक बनती थी, वो कहती हैं तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, यहां तो विधायक और कांग्रेसी लीडर और दूसरे लीडर मिलकर पुलिस वालों से हिंदुओं को भी मार रहे हैं, सिखों को भी मार रहे हैं, एक भाग लगी हुई है संपत्तियों को हड़पने के लिए। अगर आप रिकॉर्ड्स देखिए, ये चीजें आपके लिए नहीं आ रही होंगी सब। ये जो हम सुनते हैं ना कि बहुत शांत, ये करप्शन की भरमार है, गरीब आदमी की जमीनें छिन रही हैं। किसी को अगर मैं भी एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, एक ग्रामीण इलाके में पैदा हुआ हूं, मुझे पता है जमीन की क्या कीमत है और कौन सी जमीन की क्या कीमत है। अगर आपकी जमीन सिंचाऊ है तो अच्छी जमीन है। तो इस प्रकार के झगड़े, ये अगेन आपको समझना, गवर्नमेंट की परिस्थिति पंजाब में सरकार एग्जिस्ट नहीं कर रही है। 47 में हर आदमी मारकाट में लगा है। अगर आप पुलिस महकमे में विधायक हैं, आप मंत्री हैं, आप रिपोर्ट्स पढ़िए, आप जानकर शॉक हो जाएंगे देखकर ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स पूरे पन्ने पर आप देखिए। तो इस प्रकार का वातावरण है पंजाब में। तो ये मारकाट, गरीब आदमी मर रहा है, प्रशासन तो है ही नहीं। प्रशासन की ना होने की व्यवस्था यहां तक की थी कि पंजाब के गवर्नर चंदूलाल त्रिवेदी एक टेलीफोन कनेक्शन चाहते थे जलंधर में, टेलीफोन कनेक्शन नहीं मिला। जो आदेश देते थे डिप्टी कमिश्नर और सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस को, ये मैंने ब्रिटेन में जाकर, इंग्लैंड में जाकर एसएसपी की, इसी दुर्भाग्य से जितने एसएसपी और डीसी थे पंजाब के अंदर 29 जिलों में, अधिकतर जो अंग्रेज थे उनकी फाइल्स आज हमारे पास नहीं है, वो इंग्लैंड में है, तो ज्यादातर कैम्ब्रिज में, साउथहैम्पटन में या लंदन में है। मैंने अनेक बार वहां जाकर ये फाइल्स को, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी, वो हैरान हो जाते हैं पढ़कर कि क्या हो रहा है। टोटल एनार्की है, हर आदमी अपने के लिए लड़ रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि सिखों के कॉन्टेक्स्ट में कि मास्टर तारा सिंह और जवाहरलाल नेहरू 29 मई को मसूरी में है और माउंटबेटन इंग्लैंड चले गए हैं। लंदन से वापस वो 30 मई को वापस आते हैं। नेहरू जी को मसूरी में कहीं पता चलता है कि सिख जो है, अकाली लीडरशिप जो है, वो पार्टीशन के जो ट्रांसफर ऑफ पावर अनाउंस होना है 3 जून को, उसके वो सहमति से बाहर निकल गई है एंड दे आर नॉट हैप्पी विद इट। नेहरू मसूरी से सुबह चलकर शाम को 9 बजे तक अमृतसर पहुंच, उस जमाने की सड़क पर आप अंदाजा लगाइए, अमृतसर से रात को 9, साढ़े 9 बजे नेहरू पहुंचते हैं अमृतसर। ये मीटिंग का रिकॉर्ड कहीं नहीं है, आपको किसी जगह, बहुत रेयर इसका एक छोटा सा रेफरेंस किसी जगह आता है, वो मेरी किताब में डिटेल से दिया है।
रात को 11 बजे जवाहरलाल नेहरू की मीटिंग होती है मास्टर तारा सिंह और 2-4 अकाली लीडर्स के साथ अमृतसर के गेस्ट हाउस में। इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ ये नहीं पता किसी को। अगले दिन अकाली लीडरशिप कहती है चलो कोई बात नहीं। नेहरू उनको कन्विंस करने आए थे अमृतसर कि हम आपकी एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे, हम एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन के साथ एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी। एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी का क्या मतलब था? एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब था अगर आपके पास इसी एक और विडंबना है एनआरकी में कि लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन हमें पंजाब में, नहीं 2.5 लाख 2.5 मिलियन यानी 25 लाख के करीब हेक्टेयर जमीन पंजाब हरियाणा में कम है जो वहां से किसान छोड़कर आएगा। जमीन की क्वालिटी तो इंफीरियर, साउथ ईस्ट पंजाब जो आज का हरियाणा है, जमीन की क्वालिटी बहुत इंफीरियर थी, पानी नहीं था। जो किसान वहां से जमीन छोड़कर आ रहे थे उनको केवल जमीन कम नहीं मिली, उनको जमीन भी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिली। ये भी एक बहुत बड़ा तनाव का कारण था। उसमें भ्रष्टाचारी का मैंने आपको जिक्र किया। तो एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी जो है, ये एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी पॉपुलेशन के साथ नहीं हो पाई। अब एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी में थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य इसी आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ योर विद हिस्ट्री बैकग्राउंड, बट मैं बड़ी सामान्य सीधी सी भाषा में आपको समझाता हूं। एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है कि ये लोग वहां जाएंगे, वो लोग यहां से आ जाएंगे। 4 जून 1947 दिल्ली के संविधान क्लब, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को सरदार पटेल गाइड कर रहे, माउंटबेटन का भाषण है, जिस दिन हम ट्रांसफर ऑफ पावर जो ये घोषणा है अनाउंस होती है। उस मीटिंग के अंदर एक पत्रकार ने लॉर्ड माउंटबेटन से पूछा कि सर क्या ये इस एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन का प्रावधान है? माउंटबेटन का कोई एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, 2-4 हजार लोग इधर से उधर चले जाएंगे। कोई, कैन यू बिलीव, पहली कॉन्फ्रेंस, पहली मीटिंग एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन के लिए 9 सितंबर 1947 को होती है। यानी पंजाब का विभाजन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन का कोई प्रावधान नहीं है। वाइसरॉय कह रहे हैं 4 जून 1947 को कि कोई एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगा। और विडंबना देखिए, कितने लोग, मैंने बताया ना आपको भी, लगभग 13-14 मिलियन लोग तो पंजाब पर से इधर उधर हुए। यानी वाइसरॉय कहता है कि 5-7 हजार लोग इधर से उधर चले जाएंगे, जो सीमावर्ती लोग हैं, गुरदासपुर और अमृतसर और लाहौर के आसपास, थोड़े बहुत सिंध के आसपास, बाकी कोई एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगा। इस प्रकार की कल्पना है, इस प्रकार की सोच है। पहली मीटिंग एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन के लिए 9 सितंबर 1947 को होती है। तो अनार्की को समझने में ज्यादा जोर नहीं लगेगा आपको। ये एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की योजना ही नहीं है, एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन कहां से होगा? एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हो गया तो एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी करनी पड़ी, सारा सिस्टम बाद में कर। उसी के अंदर मैंने बताया जैसे करप्शन बहुत ज्यादा होती है। गांधी जी का भी ये मानना था कि अमीर लोग बहुत जल्दी निकल गए, बहुत पहले आ गए और गरीब को पीछे छोड़ा। गांधी जी बार बार यही बात करते हैं। इसी मैंने आपको उदाहरण दिया, एक कैजुअलनेस है, एक बहुत ही कैजुअल इंडिफरेंस है, जो एक बहुत डिसीजन मेकिंग लेवल पर इसी देश की आजादी हो गई है, पर जो नीचे हो रहा है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। पीक वायलेंस है लगभग 30 सितंबर को। तो लियाकत अली पंजाब के पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी जॉइंट ट्रिप करते हैं पीस के लिए, शांति के लिए, और वो मोंटगोमरी जा रहे हैं लाहौर से। और उनके साथ उस कारवान में हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर हैं जिनका नाम दुर्गादास था, बाद में वो एडिटर बनते हैं दुर्गादास हिंदुस्तान टाइम्स में एक डिटेल रिपोर्ट करते हैं कि आप कल्पना कीजिए कि उस जमाने में 2 प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है और बगल में 100 मीटर दूर धूल उड़ाते हुए बहुत लंबा, एक 30-35 किलोमीटर लंबा लायलपुर से एक बहुत बड़ा सिखों का, अधिकतर सिखों का कारवां आ रहा है। और वो बहुत, उस कारवां के साथ बहुत अन्याय हुआ, बहुत मारकाट हुई थी रास्ते में। तो आप सोचिए कि एक तरफ 2 प्रधानमंत्री का काफिला, कितना तामझाम वहां होगा। इन्होंने काफिला रोक लिया और नेहरू जी ने दूर बड़ी सड़क को क्रॉस कर और उस ओर गए जहां से ये कारवां गुजर रहा था। वहां उनकी एक नजर एक साधारण ग्रामीण महिला पर, सिख महिला पर पड़ी, बुजुर्ग पर, और उससे पूछा, कुछ उन्होंने पूछा उससे। दुर्गादास साथ दुर्गादास का वर्जन रिपोर्ट है ये। दुर्गादास कहते हैं कि उन्होंने पूछा नेहरू जी ने कि आप कहां से आ रहे हैं। उस औरत ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसने नेहरू जी को पहचाना ही ना हो, as if she had not even Prime Minister of India is not a joke. तो उसको कहा, and the inverted commas, what she says, Durgadas quotes it. He says, "जे तू करना ही सी ते दस्या क्यों नहीं?" This is the question. This is the gist. मैं ये जब भी सेंटेंस कहीं भी पार्टीशन पर बोलता हूँ, across the world whenever I speak, I refer to this in Punjabi. I explain it to it. इसे ये साधारण गांव की एक औरत, साधारण एक
बुजुर्ग महिला वो पूछती है देश के प्रधानमंत्री जी तू करना ही सी इसे तू करना ही सी तो दस्या क्यों नहीं? If you had to partition this country, why did you not tell us? This is the essence of anarchy. बार बार जो आपके मन में ये क्वेश्चन उठता होगा कि इतनी मारकाट क्यों हुई, उस मारकाट के पीछे मूल कारण ये है जो मैंने आपको बताया है. You know the whole process of the ill planning. You know, partition was not only ill planned, it was considered to be superficial. इतना सुपरफिशियल लेवल पर ये डिसीजन हो रहा है कि नो वन इज बॉदर्ड. अगर आप दिल्ली का हाल देखें उस जमाने में, रिपोर्ट्स मैंने बहुत सी फोटोग्राफ्स इन किताब में जो आने वाली किताबें इसमें दिया है, कई बार तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि ये भी पॉसिबल होगा, ये भी इतना भी नाराज हो सकते हैं लोग, इतना गुस्सा हो सकता है लोगों में. तो इस प्रकार की समस्या है जो मूल रूप से आपके सामने पार्टीशन से रिलेटेड आती है. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड अनदर थिंग आई विल टेक. सो यू नो when you talk of partition, you must understand कि it was basically a colonial decision. एक उपनिवेशवादी इंग्लैंड की दूर 10,000 किलोमीटर 8,000 किलोमीटर दूर बैठे इंग्लैंड में वो निर्णय हो रहा है कि हमने दूर भारत में ये करना है. माउंटबैटन की ड्यूटी लगी. माउंटबैटन के लिए अचीवमेंट अगर आप प्रेस रिपोर्ट्स को देखें कि द मैनर इन विच इट इज पुश्ड. इवन जेनकिंस पंजाब के गवर्नर हैं 1947 जुलाई तक. इवन जेनकिंस की मैंने पर्सनल डायरी साउथहैम्पटन में अवेलेबल है यूके में. इवन जेनकिंस और फिर एक और 12 वॉल्यूम्स हैं ट्रांसफर ऑफ पावर वॉल्यूम्स. इवन जेनकिंस एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पंजाब का पार्टीशन पॉसिबल ही नहीं है, पीसफुल पॉसिबिलिटी नहीं है. बार बार टेलीग्राम्स आ रहे हैं, बार बार लेटर्स जा रहे हैं. तो इस प्रकार का ये वातावरण है कि द एडमिनिस्ट्रेशन, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फील्ड ऑफिसर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो हालात हैं पंजाब के अंदर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पीसफुल, ये मारकाट तो होगी, खून की नदियां तो बहनी बट दे आर गोइंग है. नो वन इज बॉदर्ड, नो वन इज चेकिंग इट. अगर आप ट्रिब्यून के एडिटोरियल्स, राणा जंग बहादुर उस समय एडिटर हैं ट्रिब्यून के, अगर आप उनके एडिटोरियल्स पढ़े तो आपको ये मेरी सारी बात स्पष्ट हो जाएगी. यू नो when you look at the typical colonial mindset, मैं colonial mindset पर क्यों आ रहा हूं कि जो उपनिवेशवादी सोच है, भारत की साइज, भारत के प्रॉब्लम्स, भारत की ताकत को समझना बहुत जरूरी है. 47 में ये शीत युद्ध है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद 45 के बाद एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है विश्व में. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट कोल्ड वॉर. नाउ कोल्ड वॉर डिमांडेड that India cannot be allowed to remain as such a big country. Kashmir was also followed. I've just done a book on Kashmir 1.5 साल पहले. रूटलेज लंदन ने वो प्रकाशित की है किताब. I have explained कि कश्मीर की समस्या हो या पंजाब भारत के पार्टीशन की समस्या हो, दोनों ये कॉलोनियल माइंडसेट, ये कोल्ड वॉर की कंपल्शंस थी. भारत को छोटा छोटा काटना जरूरी था. वेस्टर्न पर्सपेक्टिव. सी आज आपको बहुत अजीब लगेगा कि क्या ऐसे सोच सकते थे देश. 47-46 में ये सामान्य बात थी. दूसरे विश्व युद्ध के बाद आप देखिए यूरोप का नक्शा कैसे दोबारा से बना है. छोटे लाइन बना दिए, ये वो देश बन गया, ये वो देश बन गया. सोचा ये गया था कि भारत के साथ भी ऐसा ही होगा. Let us divide India, let us weaken India, because it is too big a nation. It cannot be left. See, this is Burma ले लीजिए, उधर से श्रीलंका ले लीजिए, उधर से अफगानिस्तान ले लीजिए, उधर से कश्मीर ले लीजिए, of course Pakistan ले लीजिए. You have this country being disintegrated. So this also you must understand in the context of partition of India, that the policy behind this whole process was of this nature. Now, the human side, you see, the human dimensions. I'll close with this. You know, Dr. Ambedkar was a very visionary man. वो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे. डॉक्टर अम्बेडकर एक जगह जिक्र करते हैं कि अगर आपने पार्टीशन करना है तो ड्रॉ अ नेचुरल बाउंड्री, हैव अ नेचुरल, यू नो, यू कैन नॉट जस्ट कॉल. इसी पार्टीशन कैसे हुआ, गुरदासपुर के बारे में सब लोग जानते होंगे. रातों रात सिग्नेचर इधर हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं. ये 4 गांव सी बहुत बड़ा अन्याय हुआ प्रमुख समुदाय के साथ कि प्रमुख जो सिख श्राइन्स हैं, मेजर गुरुद्वारास हैं, वो सारे उधर रह गए. तो लॉट ऑफ स्ट्रगल टुक प्लेस बिकॉज ऑफ दिस. बट यू सी द ह्यूमन साइड टू दिस वाज दैट अंबेडकर हैड वांट, अगर आप देश में शांति चाहते हैं तो नेचुरल फ्रंटियर बनाइए. पंजाब एंड इंडिया और पाकिस्तान की वेस्ट, जो आज का पाकिस्तान है उस जमाने का वेस्ट पाकिस्तान था, इसका कोई नेचुरल फ्रंटियर तो है नहीं. आप आए, एक व्यक्ति ने एक रिलीजियस कैनोटेशन पर किस गांव में, किस तहसील में कितनी आबादी है, अगर वो सीमा से लगता है, अगर वो मुसलमान ज्यादा है तो पाकिस्तान में जाएगा. बेसिक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान का क्या है?
एक टू नेशन थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि एक धर्म के आधार पर समुदाय, प्रमुख समुदाय, बहुमत समुदाय जो किसी गांव का है, किसी तहसील का, गांव के लेवल पर डिवीजन नहीं हुई, तहसील लेवल पर हुई, तो तहसील का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ज्वाइन कर दिया जाएगा. यानी बॉटम लाइन बीइंग दैट द होल कॉन्सेप्ट, द होल थ्योरी was flawed. India was not made for partition. Punjab was certainly not made for partition. You know, all the canal networks, the irrigation networks, the road networks, the railway networks, Punjab was not designed for partition. So, then finally, one more point I'll just bring to your notice here. If partition was expected to resolve some issues, say communal issues, it did not. It did the opposite. It did not resolve any issue of the basic. You see, most of the scholars who have worked on this field would agree to this. Partition did not actually achieve any objective, and it caused the opposite reaction. It caused the opposite results. The result is, as I told you, that what we have today is, as Dr. Ambedkar very rightly said, that it is going to be a permanent problem. And you must also remember that partition was sold as a temporary phenomena. पार्टीशन को कभी किसी ने उस जमाने में जो प्रमुख लीडरशिप है टेम्पररी माना था, ये तो वी विल रिजॉल्व बैक. As late as 49-50, there are letters of Jawaharlal Nehru saying that Pakistan and India would re-emerge because of economic compulsions. Obviously, that is not possible. So the whole concept was very frivolous, very fickle, very shaky, and it was lack of vision, lack of planning. So you have a lot of answers, a lot of queries on this, that why the violence took place, why the killings took place, essentially because there was just no planning. Colonel Jaiprakash ji, थोड़ी जी अपनी गल. I will not take too much of time. Many thanks to Professor Raghuvendra Tanwar ji for having spared his very valuable time, और हमें इस तरीके से बहुत ही एक you have given us a very big, very lucid narration of the actual things which happened over there during partition. And what you have said today is, I'm also like your family and Nirmal Kaur ji's family and other families. हमारी family ने भी बहुत सफर किया, so I can relate to all these whatever has happened. And definitely we have to cover this topic more. So I will request you to find some time to carry on the discussion from here onward. And by so saying, thank you very much, Professor. It was a pleasure to have you over here on the platform of the Punjab Pulse, and we will request you to keep joining us in the future. The pleasure was mine, Colonel Saab. So nice. Thank you. Thank you very much. Sir, ਬਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੋ. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ. जय हिंद.